वेलकम टू PYQ सीरीज। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल MCQs फ्रॉम ऑल द शिफ्ट्स दैट केम इन द एग्जामिनेशन ऑफ JEE मेंस अप्रैल 2023। आज जो हम क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This question came in 6th April, second shift 2023 examination. A dipole comprises of two charged particles of identical magnitude Q and opposite in nature. The mass m of the positive charged particle is half of the mass of the negative charged particle. The two charges are separated by a distance L. If the dipole is placed in a uniform electric field E in such a way that dipole axis makes a very small angle with the electric field E, the angular frequency of the oscillations of the dipole when released is given by option A under root of 3QE divided by 2 ml, option B under root of 4QE divided by ml, option C under root of 8QE divided by 3 ml, and option D under root of 8QE divided by ml. So total we are given two charges, minus Q is there, plus Q is there. Okay sir, they are separated by some distance. That distance is L. Yes. Now a dipole comprises of two charged particles of identical magnitude Q opposite in nature. यानी ये प्लस Q है, दूसरा वाला माइनस Q है सर. The mass m of positive charge particle is half of the mass of negative charge particle. So negatively charged particle का mass I am considering 2m. So ये half है ऐसा बताया गया है आपको. So this should be half of 2m which is obviously m. Okay. उनके बीच का distance L है, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ डायग्राम में. If the dipole is placed in uniform electric field, dipole axis makes a very small angle theta with the electric field. Okay sir. अब जो angular SHM होगा उसका हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा डिमांड कर रहे हैं. आप समझे बच्चों ये वाले क्वेश्चन को. सो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. हाउ मच इज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स? इट इज ई वेक्टर. यस, हमने ये डाइपोल को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है. सो आई एम कीपिंग दिस वे. यहाँ पर प्लस क्यू हुज मास इज m, यहाँ पर माइनस क्यू हुज मास इज 2m. They are separated by how much distance sir? L. Now usually students जो dipole length होता है वो 2L होता है. So we should be careful over here. यहाँ dipole length 2L नहीं है, यहाँ पर वो L है. Correct है? Okay. But can I say when this electric dipole is placed in uniform electric field, it is going to experience a torque. How much is that torque? Tau D. That is deflecting torque given by the formula PE times of sin theta. याद आ रहा है बच्चों आपको ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. इफ रिक्वायर्ड बेटा जहां पर पी है आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ विच इज एल इंटू ई एज इट इज. इन दिस क्वेश्चन क्लियरली बताया जा रहा है दैट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. बेटा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा. तो साइन थीटा को मैं क्या करूंगा, थीटा से रिप्लेस कर दूंगा. Are you following this beta? P is electric dipole moment. I am repeating this step. Electric dipole moment is defined as the product of magnitude of charge and dipole length. Usually dipole length 2L होता है, but ये वाले क्वेश्चन में 2L नहीं है, L है. ये ठीक है बेटा. Now students, this is the deflecting torque जो इस dipole पे लग रहा है, जो इसको घुमाएगा. But can I say there will be another torque जो इसको ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन करवाने को ट्राई करेगा, रिस्टोर करवाने को ट्राई करेगा. बेटा दैट टॉर्क इज टाउ आर, रीस्टोरिंग टॉर्क. फॉर्मूला ऑफ दैट रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी आई टाइम्स ऑफ अल्फा. करेक्ट है बेटा. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन. नाउ कैन आई से बेटा कि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा तो हमें माइनस का साइन तो ऑब्वियसली यूज करना होगा. करेक्ट है. नाउ लेट मी कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक फॉलो किया स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. नाउ कैन आई से एट इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क इक्वल हो सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 1 को बेटा 2 से इक्वेट कर लूँगा. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी विल बी इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर.
बेटा आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है ये? अब LHS अगर इक्वल है तो RHS को मैं इक्वेट कर लूँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे QL इंटू ई टाइम्स ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू टाउ आर. सर व्हाट इज टाउ आर? इट इज़ माइनस ऑफ आई टाइम्स ऑफ अल्फा. यस, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है. आप एक काम कर सकते हो, आप अल्फा का फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो बेटा. दैट विल बी माइनस ऑफ QL ई टाइम्स ऑफ थीटा divided by I. I is your moment of inertia. Are you following this, students? Yes. Let me consider this alpha का equation as next useful equation number 3. So for angular SHM students, हम जो differential equation का use करेंगे that will be alpha is equals to minus of omega square times of theta. Alpha is minus of omega square times of theta. Yes. Theta is like angular displacement beta. Now can I say student this is next useful equation, equation number 4. अब ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, मतलब दोनों इक्वेशन 3 एंड 4 का LHS तो सेम हो गया, तो मैं RHS को इक्वेट कर लूँगा. मैं लिख पाऊँगा बेटा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ QEL अपॉन आई इंटू थीटा. तो माइनस कैंसिल होगा, थीटा कैंसिल होगा, आपको मिलेगा फॉर्मूला ऑफ ओमेगा स्क्वायर. What is the formula of omega square बेटा? It is QLE divided by I. करेक्ट है स्टूडेंट्स? आप स्क्वायर रूट कंसिडर कर लेंगे, आपको ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ QLE डिवाइडेड बाय I. आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स के इतना सफिशेंट है, फिर भी एक बार ऑप्शन से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. बेटा इन ऑल द 4 ऑप्शंस वी कैन ऑब्जर्व कहीं पर भी I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स हमें इसको और रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना रहेगा. लेट्स डू इट. बट ये ओमेगा का फॉर्मूला समझा आप लोगों को? यस, इट इज अंडर रूट ऑफ QLE डिवाइडेड बाय I, राइट? बट आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर. करेक्ट है? एंड सो ऑन. बट यहाँ पे बेटा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें कर रहे हैं, 2 ही चार्जेस है, 2 ही मासेस है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं ले रहे. करेक्ट है? नाउ स्टूडेंट्स यू टेल मी ना व्हाट इज m1? बेटा m1 आई एम कंसिडरिंग 2m. करेक्ट है? इनटू r1 स्क्वायर प्लस m2 व्हाट इज m2 सर? m ओनली इनटू r2 स्क्वायर. करेक्ट है बेटा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम आपको सामने दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बेटा कैन आई से सेंटर ऑफ मास जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके करीब होगा. यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हैवी चार्ज है यहाँ पे 2m उसके करीब होगा सेंटर ऑफ मास. करेक्ट है? नाउ स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल लेंथ ओवर हियर L एंड मास का रेशियो क्या है बेटा? 2/1. द टोटल डिस्टेंस इज L एंड मास का जो रेशियो है वो है 2m/m, मतलब 2/1 हुआ. तो सेंटर ऑफ मास का इंडिविजुअल मासेस से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो होगा हाफ. मास का रेशियो 2/1, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 1/2. करेक्ट है बेटा? तो आई एम कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस एज L/3. यू आर फाइन विद दिस? तो बेटा ये होना चाहिए 2L/3. आप क्रॉस चेक कर लीजिए. इन दोनों डिस्टेंस को आप जब ऐड करेंगे यू विल गेट 3L/3 विच इज नथिंग बट L. एंड मास का रेशियो बताइए 2m/m मतलब 2/1. तो जो डिस्टेंस का रेशियो है इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास से वो होना चाहिए 1/2. आप चेक कर लीजिए L/3 2L/3 रेशियो विल बी 1/2. करेक्ट है? आर यू फॉलोइंग दिस? बेटा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. व्हाट इज r1 सर? इट इज L/3. व्हाट इज r2 सर? इट इज 2L/3. स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए. तो बेटा दिस विल बिकम 2m इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस m डिवाइडेड बाई 9 4L स्क्वायर. ये ठीक लग रहा है स्टूडेंट्स आपको? सो यहाँ से ये हो जाना है बेटा, आप अपॉन में जो 9 है उसे कॉमन कंसिडर कर लीजिए. ठीक है बेटा? ml स्क्वायर कॉमन कंसिडर कर लीजिए आप. नाउ 2 + 4 विल गिव यू 6. सो स्टूडेंट्स दिस शुड बी 2ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. करेक्ट है बेटा? COM, सेंटर ऑफ मास. सो आई थिंक ओमेगा का फॉर्मूला ऑलरेडी आप पता कर चुके थे. इट इज अंडर रूट ऑफ, टेल मी, QLE डिवाइडेड बाय I, बट रिसेंटली वी फाउंड फॉर्मूला ऑफ I विच इज 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 ऊपर ml स्क्वायर. यहाँ से ज़्यादा तो कुछ सॉल्व होगा नहीं बेटा, बट एक लेंथ डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाना है. आपको मिलना है ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3
QE divided by 2ml. Is that fine with you? So omega angular frequency is equals to under root of 3QE divided by 2ml. Let's check for options now. Under root of 3QE divided by 2ml. So this should be matching with beta option A. It's a fabulous question beta. आप समझे कि नहीं कैसे करना है इसको? Yes. This MCQ came in 8th April first shift 2023 examination. Graphical variation of electric field due to a uniformly charged insulating solid sphere of radius capital R with distance small r from the center O is represented by. ओके तो हमें ढूंढना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. जैसा कि आप चारों ऑप्शंस देख पा रहे हैं बेटा, आपको चार में से एक सही ऑप्शन चूज़ करना है. करेक्ट है. अच्छा, डेटा में मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ दैट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर. ओके स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं ना, हम वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं. इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, ऑन द स्फीयर क्या होगा. सो विल स्टार्ट विद आउटसाइड द स्फीयर बेटा. सो जो डिस्टेंस स्मॉल आर है विल बी ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ द स्फीयर. करेक्ट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स आउटसाइड द स्फीयर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. यस, this is going to happen outside the sphere. Second, students, small r is equals to capital R वाला केस, मतलब पॉइंट मैंने स्फीयर के ऊपर ही बिठा दिया. सो दिस इज ऑन द स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द स्फीयर कितना होता है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा r यू हैव टू रिप्लेस बाय बड़ा r. छोटा r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बड़ा r इज द रेडियस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द स्फीयर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा. यस बेटा. केस नंबर 3, डिस्टेंस छोटा r इज लेसर दैन रेडियस ऑफ द स्फीयर. दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर. इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फॉर अ पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर is given by the formula 1/4 pi epsilon naught q times of छोटा r divided by radius का cube. Yes sir. So in this particular case students, we have to mainly focus on 1 and 3. But can I say this is valid for a point which is outside the sphere? Yes. And this is valid inside the sphere. And second one is for a point which is on the sphere. Correct है बेटा? So can I say outside the sphere electric field intensity जो होता है it is inversely proportional to square of r. E out is inversely proportional to r square. तो बेटा ये ग्राफ होने वाला है हाइपरबोला. आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हाइपरबोला. चेक दिस. इनसाइड वाले पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर will be directly proportional to the distance छोटा r. करेक्ट है. So E inside is directly proportional to छोटा r. सो ये नेचर होने वाला है स्ट्रेट लाइन दैट टू पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो बेटा ग्राफ कैसा होगा आप ही बताइए मुझे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस. यस टेल मी. बेटा इनसाइड वाले पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पर उसका आपको मैक्स वैल्यू मिल जाएगा. करेक्ट है. दिस इज ई मैक्स. एंड बेटा बाहर वाले पॉइंट के लिए इट विल बी अ हाइपरबोला. ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. हाइपरबोला ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ऐसा इस टाइप का ग्राफ आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस ए बी. नो, ए बी में तो नहीं है. व्हाट अबाउट सी? नो. व्हाट अबाउट डी? यस सर. सो द आंसर की शुड बी डी बेटा. आर यू फॉलोइंग द स्टूडेंट्स? यस. दिस क्वेश्चन केम इन 12th April first shift 2023 examination. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A: if an electric dipole of dipole moment 30 into 10 raised to minus 5 coulomb into meter is enclosed by a closed surface, the net flux coming out of the surface will be 0. Reason R: electric dipole consists of two equal and opposite charges. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A is false but R is true. Option B, A is true but R is false. Option C, both A and R are true
and R is the correct explanation of A. Option D, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay students, you tell me what you know about electric dipole. Students, electric dipole का मतलब होगा two equal and opposite charges separated by a finite distance. Yes, so if here I am considering minus q, there should be plus q here. इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम नाम भी देते हैं डाइपोल लेंथ, विच इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई 2l. करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस विल गिव यू इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो कैन आई से इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जो नेट चार्ज का वैल्यू होगा दैट विल बी ज़ीरो. माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो. यस. एंड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का फॉर्मूला होने वाला है क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज कॉन्स्टेंट बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अच्छा, क्यू नेट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? ज़ीरो हो गया सर. सो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट शुड गिव यू ज़ीरो. तो जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है क्योंकि जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है. किसकी बात हो रही है सर? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की. सो लेट्स सी असर्शन. फिर से एक बार बेटा, असर्शन में आपको बताया जा रहा है द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी ज़ीरो. एंड ये सरफेस किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से. करेक्ट है. तो असर्शन ए इज ट्रू सर. यस बेटा, रीज़न आर भी देख लेते हैं फिर. तो व्हाट इज गिवन देयर? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. डेफिनेटली ये तो है ही बेटा, सही है, ट्रू है ये. तो सर दोनों भी ट्रू है एंड जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो दिस शुड बी मैचिंग विद ऑप्शन सी बेटा. आपका आंसर होगा सी. इज दैट फाइन विथ यू? ओके. क्वेश्चन केम इन 13th April फर्स्ट शिफ्ट 2023 एग्जामिनेशन. टू चार्जेस ईच मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम and separated by a distance of 0.4 millimeter constitute an electric dipole. If the dipole is placed in an uniform electric field E vector of 10 dyne per coulomb making 30-degree angle with E vector, the magnitude of torque acting on dipole is option A 1 into 10⁻⁻8 Newton meter, B 1.5 into 10⁻⁻9 Newton meter, C 4 into 10⁻⁻10 Newton meter and option D 2 into 10⁻⁻10 Newton meter. करेक्ट है. तो बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेटा लिख लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट मीन्स Q इज 0.01 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल लेंथ गिवन है 0.4 mm. ओके सर. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसका वैल्यू है 10 डाइन पर कूलम. ओके सर. मेकिंग एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. यस सर. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल टाव इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. बेटा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आज का सेशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ किया था. टाव इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा. उसी फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चों ये. बट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने फ्यू मिनट्स अगो सॉल्व किया, थीटा काफ़ी छोटा दिया था तो हमने साइन थीटा की जगह पे क्या लिखे थे? थीटा. याद आया आपको? यस. बट फिलहाल हम साइन थीटा के साथ जाएंगे सर. सो टाव इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा. लेट्स वर्क ऑन द डेटा. बेटा चार्ज Q विल बी 10⁻⁻² कूलम. 2L डाइपोल लेंथ 0.4 mm दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. शिफ्टिंग भी हो गया, कन्वर्जन भी हो गया, दैट्स वाई देयर इज 10⁻⁻4 मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड सर 10 एज इट इज़. डाइन चलने वाला है नहीं, आप लिखेंगे इसको 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम. कूलम के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. ये टोटल हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम. ओके. सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. टॉर्क आपको ढूंढना है, मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स. ये बच्चों टाव यानी टॉर्क विल बी PE साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर. E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका बेसिक फॉर्मूला होने वाला है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. करेक्ट है बेटा.
सो आई थिंक ऑल द वैल्यूज़ आर देयर विथ यू, डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन ही करना है, कोई टेंशन है नहीं आपको। तो टॉर्क हो जाएगा बेटा क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बेटा 10⁻² कूलम इंटू 2L, 2L विल बी 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट इज साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, राइट, दैट शुड गिव यू हाफ बेटा 4/2 will give you 2, 10⁻², that is -2 -4 -4, that is -10. So torque tau should be 2 into 10⁻⁻10 Newton meter. Is that fine with you? Yes. कौन से ऑप्शन में गिवन है स्टूडेंट्स ये 2 into 10⁻⁻10 Newton meter? So the answer for this should be D. Easy है? Yes. This MCQ came in 15th April, first shift 2023 examination. The electric field due to a short electric dipole at a large distance r from center of dipole on the equatorial plane varies with distance as option A 1/r², option B 1/r, option C 1/r³, option D r. करेक्ट है स्टूडेंट्स? आप मुझे बताइए इन केस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ जनरल पॉइंट। Electric field intensity at a general point is 1/4 pi epsilon naught P divided by r cube under root of 3 cos square theta plus 1. करेक्ट है बेटा? अब ये फॉर्मूला देखकर हमें समझ ही गया होगा, दिस 1/4 pi epsilon naught इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो भी कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट वाला जो टर्म है वो भी कॉन्स्टेंट है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻³। ठीक है, बट थोड़ा अगर हम स्टेप वाइज करें तो हमें प्रॉपर रिवीजन मिलेगा बेटा। आप मुझे बताइए दिस इज़ वैलिड डेफिनेटली फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मालूम है आप सबको। शॉर्ट डाइपोल के लिए ये शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर पॉइंट आपका इक्वेटोरियल प्लेन रहेगा बेटा, सो थीटा कितना सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आप लोग? यस, इट विल बी 90 डिग्री। एक्सिस पे अगर पॉइंट है सो थीटा विल बी 0 डिग्री, इक्वेटर पे अगर पॉइंट है सो थीटा विल बी 90 डिग्री। इन जनरल कोई पॉइंट है तो थीटा विल बी थीटा, इसलिए तो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो बेटा फॉर इक्वेटोरियल प्लेन थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, व्हाट इज cos 90 बेटा? 0। सो आई थिंक दिस टर्म विल वैनिश, 1 रिमेन्स, रूट ऑफ 1 विल गिव यू 1 ओनली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए ऑब्वियसली 1/4 pi epsilon naught P divided by r³। Now I think you are quite satisfied कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा it will be inversely proportional to r³ and that's why it is going to match with option C. Is that fine with you बेटा? Easy है ये क्वेश्चन? Yes?